Good morning, everyone. I'm going to start class. So all of you are ready. I am audible to each and everyone. Everything is okay. So write down yes in the chat box. And all of you take out your notebooks, books and notebooks. Hurry up, take out. Today we will discuss glossary of this chapter, chapter 7. So all of you first prepare your notebook. Screen is visible to each and everyone. I am audible to each and everyone. Write down yes in the chat box. Yes, yes, good. Should I start? So let's get started. First, fill the index. Write down date of today, CW, chapter number 7, title of the chapter, World of Birds, Claws and Beaks, and then write down heading glossary. Write down everything. चैप्टर 6 का आपने वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद आपको चैप्टर 7 स्टार्ट करना है. जहां स्टार्ट करना वहां आपको सारी चीजें लिखनी है. CW, डेट, then write down chapter 7, write down title of the chapter and then glossary, and after that you have to start writing glossary, hard words of this chapter. Understood? इंडेक्स फिल कर लिया, इंडेक्स में जो डिटेल डालनी है वो डाल लिया. फिर चैप्टर 7 का वर्क जहां से स्टार्ट होगा ना, वहां आपको इतनी सारी चीजें लिखनी है. CW, डेट डालना है आज का, फिर आपको चैप्टर 7 लिखना है, टाइटल लिखना है, ग्लॉसरी लिखना है, देन यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड्स. अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? So all of you prepare your notebook. Hurry up fast. All of you have done? And now stop. After the class, I'll provide you PDF of this one. And after that, you have to write. Right now, you don't need to write. You have to listen to me and participate in the session. Okay? So let's get started. First word is material. A substance that can be used for making or doing something. वैसा substance जिसका यूज हम करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए और करने के लिए ना, उन चीजों को क्या बोलते हैं? मटेरियल. लाइक फर्नीचर. फर्नीचर किससे बनता है? वुड से. तो दैट इज मटेरियल. ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील, these are the examples of material. क्योंकि इन सब चीजों से कुछ ना कुछ बनता है. तो जिससे आप कुछ बनाते हो ना, that thing is known as what? Material. Understood? बात समझ में आई? मटेरियल क्या हुआ? आपने कोई फर्नीचर बनाया, वो वुड से बना दिया, तो वुड उसके लिए मटेरियल है. आपने ज्वेलरी बनाई गोल्ड से, तो गोल्ड उसके लिए मटेरियल हो गया. ठीक है? आपने फूड बनाया, उसमें आपने वेजिटेबल डाला, ऑयल डाला, तो वो सब उसका क्या हो गया? मटेरियल हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, जिससे वो चीज बनी है. अंडरस्टूड? बात समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? MATERIAL. You have to learn the spelling of this word. Then claws. One of the long curved nails on the end of an animal's or a bird's foot. सबको मालूम है ना claws क्या होता है? We have already discussed about the function of the claws. Claws are very important part for the birds. Now, write down function of the claws in the chat box. Write down क्या क्या function है. Claws के help से bird क्या करता है? Do you know answer of this one? चलो मैं आपको क्लॉज दिखाती हूँ कैसा होता है. We have already discussed, but again I'm making you explain. This part is called what? इसी को क्या बोलेंगे?
क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, क्लॉज है। क्लॉज सिंगुलर, एस लगा दिया तो क्या हो गया? प्लूरल। समझ आई बात? With the help of the claws, birds, what do? They sit on the branches of the tree. They hold their prey. Hold करते अपने prey को. They catch food and protect themselves. These are the functions of claws. Birds, they do these activities with the help of the claws. Claws के से birds ये सारे काम करते हैं। मालूम है ना आपको? prey को hold कर लिया, ट्री पे पर्च करते विद द हेल्प ऑफ द क्लॉज, फूड को कैच किया, अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया ना। स्नैच कर लेते हैं इसे, स्क्रैच कर देते एनिमल्स को, कोई चीज उनको स्नैच करनी है, मतलब छीनना हुआ तो क्लॉज के हेल्प से छीन लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही शार्प है, हार्ड है, हॉर्नी है इनका, सॉफ्ट नहीं होता ये क्लॉज। इट लुक्स लाइक आवर नेल्स, नेल्स की तरह स्ट्रक्चर है, but claws are very hard. So now all of you understood, familiar with the claws? Okay. Now come to the next word, cracker. A person or thing that cracks. Person or thing जो crack करता है उसको क्या बोलते हैं? Cracker. Birds have cracker beaks. Birds के पास कैसे beak होती है? Cracker beak होती है ना, क्योंकि birds क्रैकर बीक के हेल्प से ना क्रैक करते हैं। सो such type of beaks are called what? क्रैकर बीक्स। क्योंकि उसका काम क्या है? फूड को क्रैक करना, नट्स को क्रैक करना। पिक्चर दिखा रही हूं मैं आपको। See, cracker beaks. With the help of cracker beaks, birds crack the nuts. ये बीक ना इसको क्रैक कर रहा है, तो बीक इसके लिए क्या हो गया? क्रैकर हो गया। अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकर? क्रैक, इस नट को इसने क्या कर दिया? टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रैक कर दिया, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड क्रैक। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट? क्रैक बोलेंगे इसको, कि नट्स को क्रैक कर दिया। क्रैक किसने किया? बीक ने किया, तो बीक क्या हो गया? क्रैकर। करने वाला क्या हो गया? क्रैकर। So now all of you understood the meaning of crack and cracker. समझ में आ गई बात? Okay. Next word, hooked beak. Beak curved like a hook. Beak का structure कैसा होता है? Hook की तरह ना? To bite and tear the flesh of animals. All of you look at this one. This beak looks like a hook. So this beak is called what? Hooked beak. Eagles, vultures, they have hooked beak to eat, to tear the flesh of animals, to bite the flesh of animals ना? फ्लैश को क्या करना है? टेयर करना है, तो उसके लिए कैसे बीक होनी चाहिए? हुक, शार्प, पॉइंटेड। नाउ ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद हुक्ड बीक्स। क्या होता है? समझ में आ गई बात ना? नेक्स्ट वर्ड, प्रोब, समथिंग विच पेनिट्रेट्स। जो पेनिट्रेट करता है, होल बनाता है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट? प्रोब।
पेनिट्रेट करना, टू मेक होल. Spear, a long stick with a sharp tip used as a weapon. एक long stick हो जिसका टिप क्या हो, शार्प हो. उसको कैसे यूज करते हैं, वेपन की तरह यूज करते हैं किसी एनिमल्स को, प्रे को किल करने के लिए. बर्ड्स दे हैव अ स्पेयर बिक्स, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग स्टिक की तरह. टिप कैसी होती है, शार्प होती है. और उसका यूज क्या करते हैं वो, प्रे को किल करने में. लाइक क्रेन एंड किंगफिशर, दे हैव अ स्पेयर बिक. सी स्पेयर बिक्स लॉन्ग है और इसकी टिप कैसी है, शार्प है. So such type of beak is called what? Spear beaks that help a bird in fishing. Bird की help किस में करता है, फिशिंग में help करता है. फिशिंग करने के लिए कैसी बीक होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए स्टिक की तरह, और उसकी टिप भी कैसी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, to pull out the fish na from water. Now all of you understood that what is the meaning of spear beaks? स्टिक की तरह लॉन्ग हो और उसकी टिप कैसी हो, शार्प हो. Next word is tweezer. It means pull out, बाहर निकालना. That activity is called what? Tweezer. आप किसी चीज को बाहर निकालते हो ना, पुल आउट करते हो, खींचते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, tweezer. And birds have such type of beaks. Birds का बीक ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, पुल आउट करते हैं इंसेक्ट्स को, फिश को अंदर से. तो उनके बीक को क्या बोलते हैं, ट्वीजर बीक्स. नेक्स्ट वर्ड इज पर्च, टू होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री टाइटली. आप ब्रांच को जो बर्ड्स ना होल्ड करके रखता है टाइटली, उस पर सिट करता है. बर्ड्स दे सिट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. दैट सिटिंग पोजिशन इज कॉल्ड व्हाट, पर्च. ये ब्रांच पे जैसे बर्ड्स यहाँ पर है, this sitting position is called what? This sitting position is called perch. Now all of you understood the meaning of perch. जो bird sit करता है कहाँ पे, ब्रांच पे, ट्री के ब्रांच पे, उस सिटिंग पोजीशन को, उस बैठने को ही पर्च बोलते हैं. Then wait, it means to walk through water. Water के थ्रू वॉक करना ना, that activity is called wait. We can't wait because our legs are heavy, so we can't wait. हम wait नहीं कर सकते, water के through walk नहीं कर सकते. We can't walk on the mud, but birds have wading feet. Birds के पास कैसा feet होता है, wading feet होता है, very long and thin, light होता है, तो they can easily wade. वेट कर सकते हैं, वाटर के थ्रू वॉक कर सकते हैं, मड पे वॉक कर सकते हैं. सो उनके फीट को क्या बोलते हैं, वेडिंग फीट. एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड वेड. और मूवमेंट को क्या बोलेंगे, वेड. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास्प. ग्रास्प मीन्स टू टेक होल्ड. किसी चीज को आप होल्ड करते हो ना, दैट इज कॉल्ड ग्रास्प. लाइक बर्ड्स दे ग्रास्प प्रे, तो होल्ड करना वो एक्टिविटी क्या है, ग्रास्प. All of you understanding? If you have any query, you can ask to me. Next word is scratch. To rub a surface with a sharp object. आप ये scratch करते हो ना नोटबुक पे, बुक पे, sharp object से आप उसको rub करते हो. That activity is called what? Scratch. Peasants means a type of bird with a long tail.
टाइप ऑफ बर्ड है जिसकी टेल कैसी होती है, लॉन्ग होती है. That is called peasants. Now we have discussed all these words of this chapter, and after the class you have to write down in your notebooks. ठीक है, आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, लिखना है. I'll provide you PDF and then you have to write down. Understood? And you have to learn the spelling and meaning of these words. This is very important for you. मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए. In the next class, I'll ask some questions to you. So आपको learn करना है. It is clear to each and everyone? And now I am going to show you the videos of claws and beaks of birds. So all of you are ready?